we are here with the question from December 2011 question paper for 4.75 marks. That means it is a multiple select type question. We have to check all the options. Okay. So what is the question? Let me read it first. Consider a matrix A, Aij of order n cross n with integer entries. Okay. So we will underline this integer entries. We have all entries of integer types such that Aij is equals to 0 for I greater than j. That means अगर हम उस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि Aij जो है 0 होगा अगर I ग्रेटर देन हो j से, एंड Aii is equals to 1 होगा for all I 1 2 3 एंड दैट मीन्स सभी की सभी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारी क्या होंगी 1 होंगी. ठीक है. डायगोनल एंट्रीज जो है मैट्रिक्स में क्या होगी 1, और अगर I ग्रेटर देन j है तो वो एलिमेंट क्या होगा 0. ओके. और अदर देन all entries are integer type. So which of the following property must be true? A inverse exists and has integer entries. A inverse exists and has some entries that are not integers. A inverse is a polynomial function of A with integer coefficient. A inverse is not a power of A unless A is identity matrix. Okay. So we will start from first option. So what is written? A inverse. So we all know that A inverse is equals to 1 upon mod A adjoint A. Okay. So first of all let me construct that matrix A which is given in the question. So if A is n cross n type matrix, so that will be A11, A22 and ANN type. ठीक है. और यहाँ पर क्या होगा A12, A13 and so on. और ये क्या होगा 21, 31 and so on. इस टाइप के मैट्रिक्स होगा. तो कंडीशन क्या है Aij जो है 0 होगा अगर I ग्रेटर देन हो 0 से. तो यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे पास इन सभी के अंदर जो हमारा I है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे J से. देख भी सकते हो आप 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पर क्या आएगा A32 दैट इज 3 इज ग्रेटर देन 2. तो ये सारे के सारे जो है एलिमेंट जो है डायगोनल से नीचे वाले सबके सब क्या हो जाएंगे 0. और जो डायगोनल पर एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएगी 1, और जो ऊपर की जो एंट्रीज हैं वो क्या होगी सभी इंटीजर. दैट मींस जो मेरा ए मैट्रिक्स है वो किस टाइप का होगा 1 1 1 सो ऑन 1. यहाँ लिख देते हैं n क्रॉस n. ठीक है. और यहाँ पर सभी एंट्रीज क्या होंगी 0 0 0 एंड 0. ओके. एंड यहाँ पर कुछ कुछ हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में एंट्रीज हो. ठीक है. क्लियर है कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया हमने. जो Aij है वो 0 होंगे अगर I ग्रेटर देन 0, यानी जो लोअर साइड के जो है डायगोनल से वो सब 0 हो गए, डायगोनल पे सभी 1 हो गए. तो क्लियरली आप देख सकते हो इसका जो डिटर्मिनेंट जो है वो आएगा क्या इन सभी का मल्टीप्लाई. बिकॉज फर्स्ट रो को अगर आप फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्सपेंड करते हो तो इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट इज n times, so it will give you obviously 1. So determinant is nothing but 1. So here A inverse will be equals to adjoint A because modulus A is determinant A is 1. Okay. So A inverse is equals to adjoint A. Now what will be adjoint A? Okay, we don't have entries here. We just know that here at all places we have integer entries. So when we will multiply integers we will get obviously integers. Okay. Here determinant is 1, so we will not divide any integer with any real number or integer number. That means integer multiplication of integer, addition of integer and subtraction of integer, that will be integer obviously. So adjoint A will be of integer entries. Okay, it should be clear because determinant of A is 1, so adjoint A is integer entries. So A inverse exists, obviously exists because determinant is not equals to 0. So A inverse exists, yes it is true, and it has integer entries, yes this is also true because A inverse is equals to adjoint itself. So what is adjoint? Adjoint have only integer entries, so option A is correct. So now option B, you can discard it. How? A inverse exists, this is true, but
it has some entries that are not integers. It is not possible, okay, because when we will find adjoint of A of this matrix, we will always be getting integer entries. So this is not possible. So B is not right. So we will talk about C. A inverse is a polynomial function of integer coefficient. So what will be A inverse? A inverse, you are getting adjoint A, and A inverse is a polynomial function. Okay, we want here polynomial function. Okay, you can understand it like this. So if you want to find characteristic polynomial of A, I will write it like Cx. So it will be nothing but x minus a, x minus a, x minus a n times. So that will be x minus a raised to n. So this will be characteristic polynomial for this matrix. So what will be Ca? It will be a minus identity raised to n. Okay, so we want a polynomial function of a with integer coefficient. Okay, so जैसे सपोज आपके पास a स्क्वायर a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, तो आप क्या करोगे, इस पूरे में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई होगा तो आई, और आई को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स। यहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये सारा चला जाएगा नेगेटिव में। तो कहने का मतलब क्या है, ए इनवर्स जो है वो ए के अंदर आपके पास एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, और इसके जो कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ -1 है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ए इनवर्स जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ए का, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से इसको जब एक्सपेंड करोगे तो इक्वल उसको 0 के रख सकते हो, और उस पूरे में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से ए इनवर्स जब आप निकालोगे तो आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा ए के अंदर। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो ए इनवर्स है वो पॉलिनोमियल होगा किसका, ए का। उसमें कह रहा है कि विद इंटीजर कोफिशिएंट, सो ऑब्वियसली वी विल गेट इंटीजर्स। व्हाई, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर कोई रेशनल नंबर तो आ नहीं सकता, इसके एक्सपेंशन में आएंगे क्या, सभी के सभी इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर आएंगे, तो यही बात इसने बोली है कि ए इनवर्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विद इंटीजर कोफिशिएंट। तो यहाँ से ये चीज़ भी हमारी क्या हो गई, करेक्ट। अब चलते हैं हम लास्ट ऑप्शन पर हमारा, कि लास्ट ऑप्शन क्या कहता है। You can pause the video if you want to note down it. Okay. So, what is the last option? A inverse is not a power of A unless A is identity matrix. Okay. I will read it again. A inverse is not a power of A unless A is identity matrix. Okay. Contradiction में assume कर लेंगे, ये कह रहे हैं कि A inverse is not a power of A. So we will assume that A inverse is equals to some power of A, so यहाँ लिख सकते हो for some k belongs to Z, okay। so यहाँ पर कोई पावर होगी A की और वो इक्वल हो जाएगा किसके, A इनवर्स के। तो ये कह रहा है कि A इनवर्स इज नॉट a power of A unless A is identity matrix, so we are assuming that A इनवर्स is equals to some power of A। so हमारे पास अगर ये ट्रू है तो ये A जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो चलिए देखते हैं ये ट्रू है या नहीं। A इनवर्स को यहाँ ले आइए, तो आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू A के प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, इसको आप लिख सकते हो 0 इज इक्वल्स टू ए के प्लस 1 माइनस आइडेंटिटी। तो जो पॉलिनोमियल है आपका वो एक पॉलिनोमियल है x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मिनिमल पॉलिनोमियल की, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जब x के प्लेस पर हम a पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। यानी जो हमारा जो a है, जो हमने इससे कंस्ट्रक्ट किया था a, वो हमारे इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो mx जो है वो bx को डिवाइड करेगा, और x रेज टू n माइनस 1 x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 जो है वो हमारा px है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस अल्फा 1 up to so on x minus alpha n, because here you can mention these alpha i's are k plus 1th root of unity. Okay, this thing you know very clearly, that if we have a polynomial x raised to n plus 1 minus 1, so this polynomial you can always write it in this form, and these alpha i's are power here n plus 1, so it will be, you can write here n plus 1th root of unity. Okay, but we know one thing,
from the construction of our matrix A, since all eigenvalues are 1, जो सारी की सारी आइगन वैल्यूज डायगोनल पे थी हमारे पास वो क्या थी, ओनली 1 थी, तो ये सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1, यानी कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो क्या होगा x माइनस 1 होगा, क्योंकि ये सारे के सारे पोलिनोमियल क्या होंगे x माइनस 1 रेज टू n टाइप का हम इसे लिख सकते हैं, तो x माइनस 1। तो मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो मैट्रिक्स को हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस i, सो मिनिमल पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0, सो मिनिमल पोलिनोमियल जब a पुट करेंगे तो वो इक्वल होगा 0 के, तो a क्या आ गया आइडेंटिटी। सो a आइडेंटिटी कब होता है, जब a इनवर्स जो है उसको a की किसी पावर में हम लिख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, a इनवर्स इज नॉट ए पावर ऑफ a, इफ दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ए पावर ऑफ a अनलेस a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ दिस इज नॉट ट्रू देन दिस इज नॉट ट्रू। ओके, सो वी आर गेटिंग हियर a इनवर्स इज इक्वल्स टू some power of a, then this implies a is equals to identity, so if this is not true then this will not true, so unless a is identity matrix a is not a power of a, so this is also true, so इसमें ऑप्शन A, C और जो D है वो हमारा ट्रू, ठीक है।